हेलो स्टूडेंट्स, आज जड़ा अपना टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक है जो फस्ट समैसटर दे बच्चों ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ट्रेड्स ਲਈ कॉमन ड्राइंग है। ठीक है, ਅੱਜ अपना जड़ा चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है। ठीक है, तो सब तो पहला ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ टॉपिक है वो है अपना डिमेंशनिंग ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिमेंशनिंग बारे गल करांगे। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वो है इंट्रोडक्शन, dimensioning of the components and their recommended practices, dimensioning the object features, placement of dimensions and problem solving steps। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। Dimensioning is the process of specifying parts information by using lines, numbers, symbols and notes। मतलब जो lines ਆਪਾਂ numbers, symbols, notes यूज करते हैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dimensioning ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। फॉर एग्जांपल जिवें मैं ਇੱਥੇ एक होल बनाया, ठीक है, ਉਹਨੂੰ मैं एक एरो आ लाइंस ਤੇ एरो यूज कर लिया, प्लस एक सिंबल यूज कर लिया डाया ਦਾ, ਤਾਂ नंबर यूज कर लिया 50। ठीक है, जे इसे तरह कोई रेडियस होवे ਤਾਂ मैं ਉਹਨੂੰ की सिंबल R2 लिख सकदा, रेडियस ऑफ 2 mm। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨੋਟਸ। ਲਾਈਨਸ ਟੂ ਬੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ थिन कंटिन्यूअस लाइन। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਲਾਈਨਸ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਡਨ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਲਾਈਨ। ਸਿੰਬਲ ਔਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕਾਮਨਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਡਰਾਇੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲਸ ਤੇ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਡਾਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ R ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਫੇਸ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਰ ਫਿਨਿਸ਼, ਸੈਮੀ ਫਿਨਿਸ਼, ਰਫ ਕੱਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਿੰਬਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਆ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਫੀਚਰ। मतलब ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 10 ਡਾਇਆ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਜ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਅਸੈਂਬਲ ਇਨਟੂ ਅ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਸ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਸਿਸ
कि एक ड्राइंग दे विच आपां नूं यूज़ होने हैं, जिन्हों आपां कह दिंदे हैं बिल ऑफ मटीरियल बनता है। ठीक है, जे असैंबली ड्राइंग होवे तां एक बिल ऑफ मटीरियल बनता है, एक टेबल हुंदा है, जिहदे टेबल दे विच एक सीरीयल नंबर लिख लेने हैं जी, ते 1 2 3 4, ठीक है, ਉਹਦਾ नेम ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, नेम ऑफ कंपोनेंट, क्वांटिटी लिख लेने हैं, फिर ਉਹਦਾ मटीरियल मैंशन कर लेने हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ की है, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ। ਜੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਲਰੈਂਸਿਸ, ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੋਲਰੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਰਫਨੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, कि फिनिशिंग चाहिए आ, सुपर फिनिश चाहिए आ, सैमी फिनिश चाहिए आ, या रफ कट ही चाहिए। ठीक है, सरफेस रफनेस आप दस सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग और असैंबल प्रोसैस डिस्क्रिप्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस दस सकते हैं कि इत्थे ड्रिल होना है, टैपिंग होनी है। ठीक है जी, टैपिंग होनी है, ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਫਨੈਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮਿਲਿੰਗ, ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮਿਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲ ਮਿਲਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਟਰਨਿੰਗ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ एक ड्राइंग दे विच आपां डिस्क्राइब कर सकते हैं। नैक्सट आ गया अपने डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स। आपां किहड़ी कंपोनेंट्स दी डिमेंशनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स की हुंदे ने, देखो एक एक्सटेंशन लाइन हुंदी है, डिमेंशन लाइन हुंदी है, डिमेंशन नंबर्स हुंदे ने, लीडर लाइन्स हुंदियां ने, नोट्स हुंदे हैं। ठीक है, जिहड़ी एक्सटेंशन लाइन देखो, एक्सटेंशन लाइन जी अपनी मैं रेड कलर के नाल शो कर रहे हैं, ये एक्सटेंशन लाइन्स हो गई। ठीक है जी, ये एक्सटेंशन लाइन्स हो गई, तो जी मैं ग्रीन कलर नाल शो कर रहे हैं, ये कड़ियाँ हो गई, ये डिमेंशन लाइन्स होंगी। डिमेंशन लाइन्स दे हमेशा आप पिछे एरो हैड पाने हैं। तो डिमेंशन नंबर्स, आ डिमेंशन नंबर्स हो गए, जिन्हें भी आ डिमेंशन नंबर्स है। ठीक है, लीडर लाइन्स जिमें आ कि आप रेडियस दिता होया, आप डाया उहदा स्पैसीफाई किया होया, तो आप सिर्फ सर्कल नूं टच करके एक लीडर लगा के नाल एक सिंबल प्लस एक डिमेंशन नंबर ला देने हैं, उन्होंने आप लीडर लाइन्स कहने हैं। ठीक है, उस तो बाद डिमेंशन नंबर्स जिमें 16 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 123 हो गया, 13 हो गया, एक ये सारे डिमेंशन नंबर्स ने। ठीक है, जो भी आपां नूं एक चीज़ की डिमेंशन दस रहे हैं कि इसकी डिमेंशन या लेंथ, इसका डाया या रेडियस या एंगल कितना है। ठीक है, उन्होंने आप डिमेंशन नंबर्स कह देने हैं। उस तो बाद लीडर लाइन्स, लीडर लाइन्स हो गई, इंडिकेट द डिटेल ऑफ द फीचर विद ए लोकल नोट। ठीक है, आप लोकल नोट नाल जिवें नोट दिता होया उन्होंने आप लीडर लाइन्स भी कह देने हैं। तो नोट्स जिमें कि आप दिता, जिमें इत्थे एक डाया मैं होर सर्कल बना देना, तो ये मैं ये लिख देना 2 होल्स ऑफ डाया 10। ये आप एक लोकल नोट हो गया कि मैं चाहे उत्थे स्पैसीफाई ना करा तो मैनू ऑबवियसली क्लीयर है कि इस नोट तो क्लीयर है कि 2 होल्स ने जड़े जिन्हों का डाया की है 10 mm है। ठीक है, जे मैं इसनूं ना भी स्पैसीफाई करा तो मेरे को इत्थों क्लीयर हो जाती है। या आप कह सकते हैं कोई भी आप ड्राइंग के विच लिख सकते हैं अनस्पैसीफाइड या कुछ अनस्पैसीफाइड फिलेट्स ऑफ 2 mm। मतलब जे आप कोई किते जिवें आ फिलेट लगी हुई है, इत्थे तो स्पैसीफाई किया होया कि R16 की फिलेट लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे फिलेट लगा लेना। ठीक है, ये बहुत छोटे एक इत्थे फिलेट लगा लेना, ये दोनों की फिलेट सेम है, तो जिन्नियां भी अनस्पैसीफाइड फिलेट्स ने वो की है रेडियस 2 mm दियां मैं लगा सकता है। ठीक है, जो भी उत्थे डिमेंशन मैंशन की होगी, रेडियस थोनों मैंशन किया होगा, उस नाल तुसीं अनस्पैसीफाइड फिलेट्स लगा सकते हो। ठीक है जी,
ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਅਪਲਾਈਂਗ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਡਨ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ एक्सटेंशन लाइन्स, डिमेंशन लाइन्स एंड डिमेंशन नंबर्स। आप डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटेंशन लाइन्स भी मैं थोनू दस दियाँ आ एक्सटेंशन लाइन्स ने, ठीक है, जिहदे नाल एरो हैड होणगे वो की है डिमेंशनस लाइन ने। आ डिमेंशन नंबर्स हो गए, ठीक है। जे एंगल दा आपां एंगल दी डिमेंशन देनी होवे तां आपां की है 45 नाल डिग्री का साइन जरूर लगावांगे। जे आपां डिग्री नहीं लगावांगे तां आपां नूं पता नहीं लगेगा कि एंगल दिता होया या की दिता होया, डिमेंशन दी हुई है, ठीक है। एंगल जो भी एंगल आप स्पैसीफाई करना तो नाल डिग्री का साइन जरूर लगाना है। जो भी आप कोई होल नूं स्पैसीफाई करना है, ठीक है, जो भी आप होल नूं कोई स्पैसीफाई करना है तो डाई का साइन जरूर लगाना है। जे रेडियस नूं स्पैसीफाई करना तो आर कैपिटल आर नाल जरूर उत्थे लिखना है कि ਇਹਦਾ रेडियस R16 है, R10 है, R20 है, जिन्ना भी रेडियस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। The appropriate method depends upon the object feature। मतलब ऑब्जेक्ट ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ऑब्जेक्ट फीचर्स ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। डिटेल ऑफ लोकल नोट डिपेंड अपॉन the ऑब्जेक्ट फीचर्स। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ डिजाइनर या ड्राफ्टर की करता है कि वो थोनू सीधा ही लिख देंदा है कि इन्ने नोट्स, जिवें आपां एक गल कर लेने हैं, एक मेरे को सर्कल है, ठीक है, इते 6 होल्स ने, ठीक है, ये थोड़े जे आपां इक्वली स्पेस्ड नहीं हैगे। जे सॉफ्टवेयर जे तो हुंदे तां मैं इक्वली स्पेस्ड करके दिखा दिंदा। ते आपां इहदे विच की लिख सकदे हां, एक नोट दे के मैं थोनू दस दिना, डाया 5 holes of dia 5 mm at PCD dia 50 मीनस की है 5 होल्स ने 5 mm दे ने PCD जिन्हों आपां जिहदे उत्ते होल बने हुए ने पिच सर्कल डाया कहंदे आ PCD नूं, PCD पिच सर्कल डाया, ठीक है। तो PCD ते जो ओदी PCD दी डिमेंशन कितनी है वो 50 दी है। आ डाया 50 का हो गया ते आ 5 होल्स ने जेड़े डाए 5 दे ने, ठीक है। इनू आपां इस तरह भी डिटेल आपां दे सकते हैं। उस तो बाद डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स अपनी रिकमेंडेड आ गई, अपनी रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस आ गई, ठीक है जी। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस आप देखो, ऑलवेज लीव ए विजिबल गैप अप्रॉक्स 1 mm फ्रॉम ए व्यू और ए सेंटर लाइन बिफोर स्टार्टिंग अ लाइन, ठीक है। देखो जिवें इत्थों ते आ देखो आ छोटा जिहा दिता होया कि आ जिहड़ा गैप आ अप्रॉक्स 1 mm तो होना चाहिए, क्योंकि उसनू ऐ ना लगे कि ये ड्राइंग के नाल लाइन जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आपां नूं इसलिए ये थोड़ा जिहा डिफरेंशिएट करना पैंदा है कि एक्सटेंशन लाइन ते एक फिगर दी लाइन दे विच, ड्राइंग दी लाइन दे विच आपां 1 mm का गैप जरूर रखते हैं। जिवें गुड प्रैक्टिस है एक, ठीक है, आपां 1 mm का गैप रखा होया, ठीक है। सारे किते देखो आ जिथे जिथे मैं सर्कल्स कीते हुए ने इत्थे की है, सारियां दा की है एक mm का गैप रखा होया। हुण इत्थे की है पुअर प्रैक्टिस की होगी, इत्थे बिल्कुल ही इहदे नाल ही टच करता, जो कि मतलब एक बैड प्रैक्टिस आपां कह सकते हैं कि डिमेंशनिंग की एक बैड प्रैक्टिस है। तो जड़ा भी अगे ड्राइंग या ऑपरेटर को जाऊगी या किसी होर नूं आपां सेंड करते हैं तो ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊगा कि ये की पार्ट का ही नाल कोई फीचर है या मतलब डिमेंशनिंग की लाइन है, ठीक है। तो आपां नूं जिहड़ी क्लीयर करन लई आपां नूं 1 mm अप्रॉक्स 1 mm या 0.5 mm आपां नूं थोड़ा जिहा डिस्टेंस विच रखना पैंदा है पार्ट तो, टू ईजीली अंडरस्टैंड दी ड्राइंग एंड दी dimensioning features, okay। Extend the lines beyond the last dimension line 2 to 3 mm, मतलब जड़ियाँ आ की है दो आ जड़ा डिस्टेंस है 2 या 3 mm होना चाहिए, ठीक है।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲਾइन ਆਪਾਂ कितने तक खिंच सकते हैं 2 to 3 mm। ठीक है, अगे एक्सटेंशन लाइन्स ਆਪਾਂ एक्सटेंशन लाइन्स मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस चुकिया कि डू नॉट ब्रेक दी एक्सटेंशन लाइन्स एज दे क्रॉस एनी लाइन टाइप। एग्जाम्पल विजिबल लाइन, हिडन लाइन और सेंटर लाइन। एक्सटेंशन लाइन्स ऑलवेज आ कंटीन्यूअस लाइन, मतलब जी एक्सटेंशन लाइन होंगी है वो बिल्कुल कंटीन्यूअस होंगी है, वो कोई ब्रेक नहीं होंगी, आप इस तरह नहीं लगा सकते। ठीक है, जिवें सेंटर लाइन आप की करते हैं इस तरह सेंटर लाइन आप लगा लेने हैं। ठीक है, हिडन लाइन आप किस तरह लगाने आ हिडन लाइन होगी। ठीक है जी, तो आप जी एक्सटेंशन लाइन है उसनों कंटीन्यूअस लाइन के तौर पर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जिमें इस तरह एक्सटेंशन लाइन देखो आप बिल्कुल कंटीन्यूअस लाइन जा रही है। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं ये नहीं कह सकते जिमें इत्थे हिडन लाइन आ गई तो आप इत्थों एक्सटेंशन लाइन नूं थोड़ा जिहा कट करके शो करिए। इस तरह अपनी जिहड़ी है एक बैड प्रैक्टिस मनी जाती है डायमेंशनिंग दे विच। जिहड़ी गुड प्रैक्टिस है कि जिहड़ी ये एक्सटेंशन लाइन है वो बिल्कुल कंटीन्यूअस होनी चाहिए है। ठीक है, तो डायमेंशन लाइन शुड बी स्पेस्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दी व्यू। मतलब जी डायमेंशन लाइन्स है वो थोड़ा जिहा डिस्टेंस से होनी चाहिए है। जिमें अपना आ पार्ट है, ठीक है, एक कंपोनेंट है या कोई पार्ट है, तो जड़ा पहला डायमेंशनिंग आ डिस्टेंस होगा, जिमें अपनी फॉन्ट की हाइट तुसी ला लो 5 mm है, तो जड़ा ये डिस्टेंस होगा एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए। डिस्टेंस आ जड़ा डिस्टेंस है ये 10 mm होना चाहिए। ठीक है, तो जड़ा आ एटलीस्ट डिस्टेंस जिन्नी फॉन्ट की हाइट है उन्ना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी एक गुड प्रैक्टिस मनी जाती है। जे आप बिल्कुल टू क्लोज मतलब आप बिल्कुल नाल दी नाल जोड़ दिए तो वो एक की हौश पोश हो जाता है ड्राइंग दे विच, जिस नाल की है डिजाइनर ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो कई बार अपनी ड्राइंग भी क्लीयरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाती। जे आप टू फॉर कर दिए मतलब ना ही वो ज़्यादा क्लोज होवे पार्ट दे, ना ही वो पार्ट तो ज़्यादा दूर होवे, तो आप जी बेस्ट प्रैक्टिस की है आप यही याद रखना है कि 2 टाइम्स ऑफ फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट साइज अपने को 5 mm है, आप वैसे 5 mm ही फॉन्ट साइज रख रहे हैं कि ईजीली क्लीयर विजिबल होवे। ठीक है, तो आप 2 टाइम्स डिस्टेंस छड्ड के तो आप एक्सटेंशन लाइन विद डायमेंशन उत्थे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जो डबल डायमेंशन मतलब इस तरह की आप डायमेंशनस दे रहे हैं तो आप उसनूं जिन्ना फॉन्ट साइज है उन्ना ही आप डिस्टेंस वो छड्ड के आप प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आ गया अपने डायमेंशन नंबर्स। ये आ गया अपने डायमेंशन नंबर्स। ऑलवेज लेटर्ड विद द पेंसिल 2H और HB। ठीक है, या तो 2H नाल करना पैंदा है या HB नाल। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा लाइट हो ना ही ज़्यादा डार्क हो। जे ज़्यादा डार्क होंगे ठीक है तो फिर की है ड्राइंग ते उत्ते मतलब स्कैटर्ड कर सकता है पेंसिल दे, तो उसनूं की है डर्टी कर सकता है ड्राइंग नूं। तो इस करके आप जी पेंसिल यूज़ करते हैं ऑलवेज 2H या HB पेंसिल यूज़ करते हैं फॉर दी डायमेंशन नंबर्स। जोड़े भी आप नंबर्स लिखने हैं इस कड़ी पेंसिल नाल लिखने हैं 2H या HB पेंसिल नाल ही आप प्रैफर करते हैं। ठीक है, जिमें हाइट ऑफ आप जी हाइट ऑफ जिमें आ हाइट है ये आप 2 या 3 मतलब ज़्यादा वड्डा करना तो 5 mm तक आप मतलब हाइट आप दे सकते हैं। ठीक है, जी डायमेंशन की नंबर की हाइट है 2 या 3 mm सफिशेंट है। ठीक है, 2.5 या 3 mm इज सफिशेंट हाइट फॉर दी डायमेंशन नंबर। प्लेस दी डायमेंशन नंबर एट अबाउट 1 mm above एंड एट द मिडल ऑफ द डायमेंशन लाइन। या तो 1 mm ऊपर होवे डायमेंशन लाइन तो। ठीक है, जिमें अपने कोल आप जिमें हाइट है या तो 1 mm थोड़ा जा ऊपर होवे या वो बिल्कुल मिडल दे विच होवे।
कि वो स्पैसीफाई कर सकन ईजीली क्लीयरली मतलब अंडरस्टैंड हो सके कि ये जड़ी डायमेंशन है इस आ लाइन दी है या इस फीचर दी है, ठीक है। तो उतों आपां इस तरह जड़ी ये आ गुड प्रैक्टिस है। जे बैड प्रैक्टिस है तो आपां आ डायमेंशन लाइन एक्सटेंशन लाइन आपां नंबर इत्थे लिख रहे हैं, ठीक है, डायमेंशन नंबर इत्थे मेंशन कर रहे हैं, आपां नूं पता ही नहीं लगना कि ये तो डायमेंशन ही नहीं दी हुई, ठीक है। कई बार आपां बिल्कुल लाइन दे विच ही ओवरलैप कर देने हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी नहीं पता लगता कि भाई 26 भी लग सकता है 25 की जगह, ठीक है। तो इथों 34 बिल्कुल साइड ते भी नहीं आप ला सकते, बिल्कुल मिडल च होवे ते 1 mm के गैप तो थोड़ा जा ऊपर होवे, बस ये तो बाद होर मतलब ये चीज़ जड़ी हैगी आ तुहानूं याद रखने वाली है। तो पेंसिल जड़ी आप यूज़ करनी है 2H ते HB पेंसिल ही यूज़ करनी है। उस तो बाद डायमेंशन यूनिट्स आ जाते हैं अपने नंबर सिस्टम मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। जिमें ISO JSI स्टैंडर्ड्स, ISO मीनस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो JSI जापान इंडस्ट्रीयल सिस्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी तरह के सिस्टम होंगे जिमें BS होंदा, ANSI होंदा, ये मैं थोनों फस्ट चैप्टर दे विच सारा डिटेल दे विच दस चुका, इन्हां दी फुल फॉर्म भी दस चुका। तो अपना जड़ा मैट्रिक्स तो जड़ा अपना मैट्रिक सिस्टम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ देनी है तो 32, जे अपने च पॉइंट दे विच आ जाए तो आप देना 32.5, जे 0.5 आ गया तो आप 0.5 ही लिखना है, 0.5 लिख के नहीं दसना, ठीक है। कई बार पॉइंट विजिबल नहीं होंदा, डिजाइनर की करता है वो 0.5 mm लानी होंदी है तो वो 5 mm यूज़ कर लेंदा है, तो उत्थे की है सारी ड्राइंग गलत हो जाती है, ठीक है। तो इस करके आप हमेशा एक जे पॉइंट दे विच डेसीमल दे विच देनी है तो आप 0.5 जरूर लिखना है, ठीक है। ये एक गुड प्रैक्टिस दे विच डायमेंशनिंग दी आ जाती है। उस तो बाद डेसीमल इंच सिस्टम, ठीक है। अमेरिकन नेशनल अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो एग्जाम्पल वो भी इस तरह ही है, 0 आप 0.25 नहीं लिख सकते, ठीक है। 0.25 लिखांगे तो कई बार बाई चांस कोई ड्राइंग बहुत पुरानी हो जाती है तो पॉइंट बिल्कुल इंक प्रिंटर तोड़ जाती है या बिल्कुल लाइट हो जाता है, तो डिजाइनर की करता है 25 ले सकता है डायमेंशन, ठीक है। तो आप की करना है 0.25 जरूर लिखना है। जे प्रोसीजन आप किन्ने डेसीमल तक आ वो भी देख सकते हैं कि 3 डेसीमल तक आप लिखना है, 4 डेसीमल तक लिखना है, 5 डेसीमल तक लिखना है। जे एक्यूरेट चाहिए है तो आप बिल्कुल जिन्ने पॉइंट टू पॉइंट आ उन्ने तक लिखांगे। जे अप्रॉक्स डिस्टेंस भी चल सकता तो आप टॉलरेंस प्लस टॉलरेंस वगैरह वो प्लस माइनस दे सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद फ्रैक्शनल इंच सिस्टम, हुण फ्रैक्शन दे विच की है, फ्रैक्शन हुंदी की है, ठीक है। X/Y हुंदी है फ्रैक्शन, ठीक है। 1/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी है, ठीक है जी। ये सारी की है, आ भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, आ भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कड़ी होगी जे ऊपर न्यूमीनेटर वड्डा होवे डिनोमीनेटर नालों, वो अपनी की है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है जी। वो तो बाद डायमेंशन नंबर्स आ गए। अपने डायमेंशन नंबर्स यूनिट length dimension is always expressed in millimeter without a necessity to specify a unit symbol। मतलब जे आपां एक डायमेंशन दे एक ड्राइंग दे विच नोट लिख दिए कि all dimensions are in mm या all dimensions are in inches or in mm, so no need to write the unit with the dimension number। Okay, so no need to write the unit abbreviation with the dimension number, but in case of degree angle we have to put degree,
Okay, if we don't put a degree, the designer will not understand whether it is a dimension or it is an angle. ठीक है, सो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ mm ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। नेक्स्ट आ गया अपना डिमेंशन नंबर्स, नैरो स्पेस सिचुएशन। जे अपने कोल नैरो स्पेस सिचुएशन आ जाए तो आप डिमेंशनिंग किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ नॉट इनफ स्पेस फॉर द नंबर और एरोस, पुट इट आउटसाइड ईदर ऑफ द एक्सटेंशन लाइन। गुड प्रैक्टिस की है कि या तो आप आउटसाइड इधरले पासे जिधर स्पेस ज़्यादा उधर आप डिमेंशन नंबर नू प्लेस कर सकते हैं, या जे स्पेस बिल्कुल जिवें इत्थे हैगी आ तो आप डिमेंशन स्पेस इहदे विच कर सकते हैं ते जिहड़ियां डिमेंशन एरोज ने वो आप बाहर प्लेस कर सकते हैं, या नंबर बाहर कर दो, दोनों चीज़ां बाहर कर दो या इधर साइड पे कर दो। पर बिल्कुल आप हौश पौश काम नहीं करना। जे आ देखो ये एक्सटेंशन लाइन के नाल ही नंबर लग गया तो ये अपन की रीड कर सकते हैं 16.215। ठीक है, ये भी आप रीड कर सकते हैं। तो इत्थे की है जिवें इत्थे पॉइंट लग सकता वा 1.625 आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल की है अपन पता ही नहीं लग रहा कोई सिंबल है या एरो है, ये बिल्कुल क्लीयर नहीं हो पा रहा। सा ये की है अपनियां पुअर प्रैक्टिसिस ने। तो जी आप गुड प्रैक्टिस रखनी है फॉर नॉट जो इनफ स्पेस नहीं हैगी डिमेंशनिंग लई तो आप आ यूज करते हैं। ठीक है जी, नैक्सट आ गया अपना एक तो मैं थोनू मैथड दस देना कि डिमेंशन से दो मैथड होंगे ने। एक तो अपना हो गया रैफरेंस तो होंगी है। ठीक है, एक होंगी अपनी इंक्रीमेंटल या चेन डिमेंशनिंग होंगी है। ठीक है, या इनू आप रैफरेंस और एब्सोल्यूट डिमेंशनिंग भी कह दें हैं, एब्सोल्यूट और रैफरेंस। ठीक है, ये दोनों के फर्क देख लो की है। जिमें अपने कोल एक स्टैप पुली ले लेने हैं, अपने को एक सैक्शन है, आप कोई ड्राइंग है। ठीक है, मेरे को इत्थे आ रैफरेंस पॉइंट है 0। ठीक है, तो आप जे तो मैं फस्ट एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो मैं की करूँगा, जिमें आ स्टैप की लेंथ है 10, तो मैं अगली डिमेंशन इत्थों रैफरेंस पॉइंट तो ही यूज़ करूँगा। तो ये जे हैगी है तो 20। ठीक है, तो आ जी फिर मैं रैफरेंस पॉइंट तो ही यूज़ करूँगा, ये है 30। 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आ जी लास्ट ते मैं की कर दूँगा 40। ठीक है, बिल्कुल रैफरेंस पॉइंट तो ही मैं सारिया डिमेंशनस लै रहे हैं तो उन्होंने आप एब्सोल्यूट या रैफरेंस डिमेंशनिंग कह सकते हैं। जे आप इंक्रीमेंटल की गल करिए, सेम मैं वही यूज़ कर लेना। ठीक है, आ इंक्रीमेंटल है तो आ चेन डिमेंशनिंग 10, फिर अगली आ फिर 10। ठीक है, आ इत्थों मैं चक ली, फिर अगला जोड़ा स्टैप है ये 20 का ला लो। ठीक है, तो की है आह 20 का लो। ठीक है, जोड़ा आह रैफरेंस पॉइंट जोड़ा नैक्सट एंड पॉइंट हो वही वह रैफरेंस पॉइंट बन जूगा। उन्होंने आप कह दें इंक्रीमेंटल या चेन डिमेंशनिंग कह दें। ये दो तरह की डिमेंशनिंग है जी आप यूज़ करते हैं। इट इज़ मैक्सिमम यूज्ड इन CNC प्रोग्रामिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये डिमेंशनिंग जरूर तुसी याद रखनिया ने दो, एक एब्सोल्यूट डिमेंशनिंग प्लस एक इंक्रीमेंटल डिमेंशनिंग। दोनों का डिफरेंस दोनों की डिफरेंस है वो भी थोनों पता होना चाहिए। ठीक है जी, वो तो बाद जे आप अलाइन मैथड आप कर रहे सी गल, वो तो बाद अलाइन मैथड आ गया। अलाइन मैथड ते एक अपना undirectional method, the dimensions figures are placed so that they are readable from bottom or right side। ठीक है, या तो बॉटम या राइट साइड तो रीडेबल होवे। ते एक सिंगल डायरेक्शन दे विच द डिमेंशन फिगर्स आर प्लेस्ड सो दे कैन रीड फ्रॉम दी
बॉटम ऑफ दी ड्राइंग। फॉर एग्जाम्पल्स आप ये फिगर्स देख के एग्जाम्पल्स देख के थोड़ा सब कुछ क्लीयर हो जाएगा। देखो इधरों अलाइंड दे विच इधरों भी क्लीयर है, इधरों भी क्लीयर है, ठीक है। तो जड़े अनडायरेक्शनल दे विच की है, इधरों एक बॉटम तो बिल्कुल क्लीयर है, ठीक है। तो उस तरह एक एग्जाम्पल आ भी है, देखो, ठीक है, राइट साइड तो भी बॉटम साइड तो भी ते ये बॉटम साइड तो भी, ठीक है। ये दो मतलब तुसी याद रखनियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मोस्ट इंपॉर्टेंट ने एब्सोल्यूट प्लस इंक्रीमेंटल, ये दोनों डिमेंशनस इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। नैक्सट आ गए अपने लोकल नोट्स। आप जड़े लोकल नोट्स मैं थोड़ा पहले ही दस चुके हैं कि ऑलवेज यूज्ड 2H और HB पेंसिल्स, ठीक है। जो भी आप ड्राइंग शीट ते काम कर रहे हैं तो आप 2H या HB पेंसिल नू यूज करना फॉर मेकिंग लोकल नोट्स। लोकल नोट्स कड़े हो गए, मैं थोड़ा पहला भी दसिया सी, ऑल फिलेट्स जे आपां नू सारियां इक्को जिहियां फिलेट्स हैं, या ऑल फिलेट्स, ऑल अनस्पैसीफाइड फिलेट्स आर ऑफ रेडियस 2, ठीक है। अनस्पैसीफाइड ड्राफ्ट एंगल, ठीक है, अनस्पैसीफाइड ड्राफ्ट एंगल ऑफ 1.5 डिग्री, ठीक है। ड्राफ्ट एंगल जे आपां कास्टिंग दे विच गल करांगे, प्लास्टिक मोल्डिंग दे विच गल करांगे तो उहदे विच ड्राफ्ट एंगल इज दी मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ते ठीक है। तो जे आफा चैम्फर की गल कर लीए, ठीक है, वो अगे स्लाइड्स दे विच मैं ऐड किया होया है चैम्फर का भी, तो उस दे विच मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता, ठीक है। तो उन्हां दी भी हाइट जिहड़ी आपां ये हाइट्स लिखनी है तो जिहड़ा फॉन्ट साइज होना चाहिए वो 2.5 to 3 mm दे विच होना चाहिए। ये तो ज़्यादा यूज़ करोगे तो बहुत बड़ा या लार्ज हो जाएगा, जो कि एक वधिया ड्राइंग दे विच अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। मस्ट बी यूज्ड इन अ कॉम्बीनेशन विद द लीडर लाइन। जो भी आप कोई आप देखो आ दिता होया है, एक लीडर लाइन लगाई हुई है, वो 12 ड्रिल लिखता, ठीक है, मतलब ड्रिल लिखता 12 ड्रिल। इतने हूँ जी आप इतने लीडर लाइन लगा दी पर उन्होंने प्लेस बहुत दूर करता, तो इतने लीडर लाइन लगा दी प्लेस आप इस तरह करता, इट इज़ नॉट ईजीली रीडेबल, ठीक है। आपू की है ड्राइंग में इस तरह घुमाना पैना तो वो रीड हो सकूगा। हूँ जे आप इस तरह लिख देने तो ये की है अपने को क्लीयर ही नहीं हो रहा कि ये डाया वा, ठीक है। वैसे तो बंदा क्लीयर जरा समझने वाला होगा समझ सकता, पर जरा टेक्निकल बंदा है वो इस तरह मैंशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो जी गुड प्रैक्टिस है वो इस तरह तुसी मैंशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लीडर एंड लीडर लाइन प्लस डिमेंशन नंबर एंड अ नोट। प्लेस नियर टू द फीचर विच दे अप्लाइड बट शुड प्लेस आउटसाइड द व्यू। उन्होंने जड़ा व्यू तो बाहर ही रखना है, व्यू दे विच नहीं रखना, ठीक है। तो ईजीली कि व्यू नू मतलब जी अपनी ड्राइंग व्यू है उसनू वधिया ईजीली रीडेबल हो सके। प्लेस्ड अबव द वेंट पोर्शन ऑफ द लीडर लाइन, जिहड़ा बेंट करके लगाया होया तो आप इत्थे बेंट कर देने, बेंड दे देने तो उहदे उत्ते ही आप प्लेस करते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज लेटर्ड हॉरिजोंटली। हॉरिजोंटली मीनस एक वर्टिकल हुंदा, वर्टिकल इस तरह हुंदा, हॉरिजोंटल इस तरह हुंदा, ठीक है। तो आप की है प्लेस्ड की करना हॉरिजोंटली प्लेस करना। उस तो बाद डिमेंशनिंग दी ऑब्जेक्ट फीचर्स आ जाते, ठीक है। लेंथ आ गई, हुण लेंथ दे विच इंफॉर्मेशन टू बी डिमेंशन, लेंथ ऑफ द एज, डिस्टेंस बिटवीन द फीचर्स। डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स आप कड़े यूज करने हैं, एक्सटेंशन लाइन, डिमेंशन नंबर्स, मतलब ये 3 चीज़ा जड़ियाँ बिल्कुल यूज होनिया। देखो एक्सटेंशन लाइन यूज कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के डिमेंशन नंबर है, डिमेंशन लाइन है, ठीक है। ये ईजीली थोनों जो भी आ ड्राइंग दी है तो तुसी ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो बिल्कुल क्लीयरली अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये दिता की होया, ठीक है। जिमें आ लेंथ पूरी दी है 60 की, ठीक है, 60/30 की दी हुई है, ठीक है, बाहरली लेंथ। उस तो बाद
प्लेसमेंट दी हुई है, होल प्लेसमेंट दी हुई है कि 15 इत्थे है, इधरों 10 है। डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स दिता होया, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स, ठीक है। तो अपने को एक डाया भी दे सकते हैं, या आप एक नोट के नाल भी लिख सकते हैं कि 2 होल्स ऑफ डाया 10 mm, ठीक है। तो ये है एक आप जो भी लेंथ की डिमेंशनिंग करनी है तो आपां नूं इस तरह करनी है। उस तो बाद एंगल की गल कर लीए। एंगल इंफॉर्मेशन टू बी डिमेंशनड, एंगल बिटवीन द एजिस, मतलब दो एंगल ਜਿਹੜੇ दो एजिस ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना बन रहा है। जिवें आ वी टाइप है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना बन रहा है, चाहे तुसी हाफ दे दो ਤਾਂ भी पता लग जूगा, जे फुल एंगल दे दो ਤਾਂ भी पता लग जूगा, ठीक है। इतों आप हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा जिहा ड्रॉ करके इत्थे इस तरह एंगल दे सकते हैं। पुअर प्रैक्टिस की है, आप एंगल बिल्कुल नहीं कर सकते, आप की है या तो सेंटर लाइन दे विच मतलब इसनू एंगल नू स्पैसीफाई करना पऊगा। आप बिल्कुल आर्क दे विच नहीं लैके जानी। कई बार की है एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल नाल जुड़ी होंदी है, तो ये की है एक सर्कल कोन टाइप लगन लग जाती है, ठीक है। तो उस तो बाद आ गई आर्क, विच इज़ द पार्ट ऑफ आ सर्कल, ठीक है। आर्क इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड, डिमेंशन, रेडियस। आर्क दा जिहड़ा की है हमेशा रेडियस हुंदा है, सर्कल दा रेडियस या डाया भी आपां मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ यूज़ कर सकते हैं, लीटर लाइन, लोकल नोट, एक्सटेंशन एंड डिमेंशन लाइन एंड डिमेंशन नंबर, ठीक है। लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर, द लैटर रेडियस ਆਪਾਂ हमेशा कैपिटल आर ਦੇ ਨਾਲ लिखना है। इन फ्रंट to emphasize the number represents the radius of an arc. Leader line must be aligned at an angle of 30 degree to 60 degree. Means आ दो एंगलों ते जड़ी लीडर लाइन है अप्रॉक्स एंगल 30 या 60 डिग्री दे विच हो जाए तो एक गुड प्रैक्टिस मनी जाती है डिमेंशनिंग की, ठीक है। उस तो बाद आर्क, आ वाली आर्क आ गई। The note and arrowhead should be placed in concave side of an arc where there is a sufficient space. देखिए sufficient space होवे, जे तो sufficient space है तो आप इनसाइड दे व्यू R200 लिख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपना सेंटर मार्क देता तो आप रेडियस भी दे सकते हैं, या sufficient space for arrowhead only, जे sufficient space कली arrowhead ਲਈ होवे तो आप की है जिहड़ा रेडियस एक लीटर लगा के R62.5 लिख सकते हैं, ठीक है। जिमें प्लेस नोट आउटसाइड, आप आउटसाइड नोट भी कर सकते हैं। जे इनसफिशिएंट स्पेस, जे इत्थे कली एरोहेड लई सफिशिएंट स्पेस होवे, इत्थे जे दोनों लई ही बोथ सफिशिएंट इनसफिशिएंट स्पेस होवे तो आप दोनों चीज़ां की है उस पर टच करके बाहर एक लीडर लगा के लोकल नोट दे सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद कॉमन मिसटेक्स आप जड़ियाँ करते हैं कि आर्क की डिमेंशनिंग लई कई बच्चे की करते हैं इतों दे देंगे हैं, जो एक बिल्कुल बैड प्रैक्टिस है डिमेंशनिंग की, ठीक है। कई इस तरह कर देंगे हैं, ठीक है। बिल्कुल या तो वो सेंटर चो करो तो हमेशा जड़ी की है इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल की है मतलब ये एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट ही करते, ये भी एक बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मतलब इतों पता ही नहीं लग रहा कि ये लाइन है कि एरोहेड है, ठीक है। आप बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं कर सकते, ये तो डिस्टेंस ही लगता है एक तरह का कि डिस्टेंस देता, ठीक है। तो इस तरह भी नहीं, आप बिल्कुल थोड़ा जहा डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, इस तरह का आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये तो पता ही नहीं लग रहा सेंटर लाइन दे कोई सेंटर चो नहीं डिस्टेंस आ रहा, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिता होया, ठीक है। ये भी एक बैड प्रैक्टिस है टू डिमेंशनिंग ऑफ एन आर्क। उस तो बाद आर्क, if the arc has a center lies outside the sheet or interfered with the other views, use the foreshortened radial dimension line। मतलब जे अपना शीट तो बाहर चले जावे, जड़ा ओदा सेंटर पॉइंट है शीट तो बाहर चले जावे, या कि है दूसरे व्यू दे नाल इंटरफेयर करे, तो वो की है आप इस तरह भी तुसी मैथड 1 की है आप जे बाहर जावे व्यू शीट तो बाहर आउटसाइड दी व्यू,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਡ 1A यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप की कर सकते हैं, इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उस तो बाद आ गई कर्व, ठीक है। ये भी एक डिमेंशन कॉम्बीनेशन ऑफ आर्क्स होंगी है, जिमें आ फर्स्ट आर्क होगी, आ सैकेंड आर्क होगी, ठीक है। तो आपां नूं दोनों का रेडियस मैंशन करना पैंदा है ते सेंटर पॉइंट मैंशन करना पैंदा है, ठीक है। तो आपां वो एक की है गुड प्रैक्टिस है। हुण देखो इत्थे कुछ भी नहीं मैंशन किया, इत्थे रेडियस दिता ही नहीं होया। हुण आ रेडियस थोड़ा जिहा स्मॉल है, आ रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। ये पता होना चाहिए एक डिजाइनर नूं या जिन्हें कोल भी ये ड्राइंग जानी है कि इत्थे किन्ने दा रेडियस लगाना है ते किन्ने दा नहीं, किन्ने दा डिफरेंट रेडियस है या इक्वल रेडियस है, ठीक है। उस तो बाद फिलेट्स एंड राउंड्स। फिलेट्स की होंदियां ने कोई भी पॉइंट लोड नूं यूनीफॉर्म लोड दे विच कन्वर्ट करन लई आपां फिलेट्स दा यूज़ करते हैं, ते शार्प कॉर्नर्स नूं रिमूव करन लई आपां चैम्फर करते हैं, ठीक है। तो आपां की है फिलेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ड्राइंग्स। सो इंफॉर्मेशन टू बी डिमेंशनड ओनली रेडियस, आपां रेडियस ही देना है विद अ डिमेंशन नंबर, लीडर लाइन, लोकल नोट, जनरल नोट, कॉम्बीनेशन ऑफ बोथ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ऑल ਫਿਲੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਫਿਲੇਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ऑल ਫਿਲੇਟਸ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 6.5, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲੇਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6.5। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ऑल ਫਿਲੇਟਸ ਆਰ ਰਾਉਂਡ ਅਨਲੈਸ ਅਦਰਵਾइज ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ, मतलब की है ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲੇਟਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ 6.5 ਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 6.5 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 12.5 ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਇਆ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਲੈਂਥ ਹੈ 150 ਤੇ ਡਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਆ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਏ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਡਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਨੀਅਰ ਕੈਲੀਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਆ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आ गया एक्सटर्नल चैम्फरिंग। मैं चैम्फरिंग ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਾਰਨਰਸ ਐਂਡ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚੈम्फर ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਐਂਗਲ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈम्फर। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ d1 ਇਨਟੂ d2, इत्थे सेम डिस्टेंस सिमेट्रिक होवे, मतलब 5 into 5 मीन्स डिस्टेंस इज सेम। इत्थे जे 10 into 5 डिस्टेंस इज डिफरेंट एंड d1 into d into थीटा, एक डिस्टेंस दा एक डिस्टेंस होवे, एक अपने कोल एंगल होवे, ठीक है। वही आप इत्थे दस्सिया होया आ डिस्टेंस है, आ एंगल दिता होया, इट मे बी 45 25 20, ठीक है। डिस्टेंस में भी 2 3 4 5 जिन्ना भी डिस्टेंस आपां नूं चैम्फर ले गया है आपां उत्थे मैंशन कर सकते हैं। केस ऑफ 45 देखो एस इनटू थीटा, टू डिस्टेंसेस आर सेम डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह आपां डिस्टेंस चैम्फरिंग नूं चैम्फर जिहड़ी की है उहनूं आपां मैंशन कर सकते हैं। उस तो बाद होल इंफॉर्मेशन टू बी डिमेंशनड, diameter, depth, location of its center and number of holes having identical specification। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਹੋਲਸ ਨੇ ਔਨ PCD 125 ਡਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਡਾਇਆ 4 ਹੋਲਸ ਆਫ ਡਾਇਆ 10 mm ऑन PCD 125। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ 125 ਹੈ ਤੇ 4 ਹੋਲਸ ਨੇ, 4 ਹੋਲਸ ਇਕੁਅਲੀ ਸਪੇਸਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 mm, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਗਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ठीक है। ये भी डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हैं, लीडर लाइन, लोकल नोट, एक्सटेंशन, डिमेंशन लाइन, डिमेंशन नंबर, लोकल नोट्स, डायमीटर एंड डेप्थ ऑफ होल शुड बी गिवन इन सर्कुलर व्यू। ठीक है, जिमें डायमीटर ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰਕੂਲਰ व्यू है ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਡਾਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਪਥ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ, ਥਰੂ ਹੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਪਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਡਰਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 10 mm ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ठीक है, कितने तक ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ड्रिल करना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, स्पेसिफाई एंड डाया एंड दी डेप्थ थ्रू होल, बिल्कुल मतलब आर पार हो गया। ठीक है, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆ थ्रू होल, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ थ्रू होल, ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ठीक है, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ 10 ਡਰਿਲ 12 mm ਡੀਪ, मीनस की है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆ ਕੀ ਹੈ 10 ਡਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਡੀਪ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 12 mm। ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 10 ਡਾਇਆ 10 mm ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ मीनस ਕੀ ਹੈ ਥਰੂ ਹੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪਥ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਲ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਹੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਹੋਲਸ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ CNC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੋਲ ਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 20। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 40। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 20 ਤੇ ਡਰਿਲ ਕਰ ਜੂਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ 40 ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨੇ ਹੋਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਾਰਜ ਹੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਹੋਲ 3 ਪੋਸੀਬਲ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਡਾਇਆ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਆ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਜ ਹੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਆ ਦੇਤਾ, ਐਰੋ ਸਿੰਗਲ ਲਗਾਤੀ ਪਰ ਡਾਇਆ ਦੇਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪੂਰਾ ਐਰੋ ਹੈਡ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਆ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਐਰੋ ਹੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਲਿਖਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਐਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੀਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਹੋਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਲੋਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਵਿਡਥ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਿਡਥ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। ਆ ਪੈਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ठीक है। पैड इस तरह भी हो सकता है ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ एक्सट्रूड ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ U टाइप, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਹੈ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੋ ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਦੋ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤੇ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, कटिंग टूल डिस्टेंस, मतलब कटिंग टूल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कटिंग टूल डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। आ कटिंग टूल कितना कितना आ वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ तक डिमेंशनिंग आ सेंटर टू सेंटर डिमेंशनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है जी। नैक्सट आ गया अपने कोल की सीट। की सीट की होती है, dimensioned according to the standard size of a key to facilitate a manufacturing process। की दी जड़ी dimension है always depend upon the dia of the shaft, diameter of shaft ते depend करती है, ठीक है। तो अपना जड़ा की सीट की होंगी है जिहदे विच की ने जाके फिट होना, आपां उहनूं की सीट कहने हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रैफरेबल साइज आप जिमें प्रैफर मैथड की है, आप सेंटर जोड़ा मेन पॉइंट है टेंजेंट इस तरह सर्कल के आउटर पॉइंट तो आउटर पॉइंट डिस्टेंस देगा, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप लैस प्रैफर करते हैं इन केस ऑफ की सीट। प्लेसमेंट ऑफ डिमेंशंस, जिमें प्रैक्टिस 1 अपने आ गया कि एक्सटेंशन लाइन्स एंड लीडर लाइन्स शुड नॉट क्रॉस दी डिमेंशन लाइन्स, ठीक है। बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जी छोटी डिमेंशन हो वो पहला प्लेस होनी चाहिए है, फिर वड्डी डिमेंशन प्लेस होनी चाहिए है, इस तरह, ठीक है। इस तरह ना हो कि पहला तुसी वड्डी प्लेस कर दो फिर छोटी दे दो, तो वो की है एक पुअर प्रैक्टिस आप काउंट करते हैं उसको। तो एक्सटेंशन लाइन्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट टू बी डिमेंशन, मतलब अपने बिल्कुल व्यू दे विच आ गई है एक्सटेंशन लाइन। तो इतों यह हो सकता है कि इस तरह वो व्यू लग सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा इस तरह ड्रॉ करनी है, बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट तो आप एक्सटेंशन लाइन्स नू रखना है, ठीक है। इस तरह नहीं करना। रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस जिमें इस तरह आ गया, हमेशा की है आ इत्थे की है एक्सटेंशन लाइन नू ब्रेक करता, तो एक्सटेंशन लाइन नैवर ब्रेक्स, इट्स अ कंटीन्यूअस लाइन, ठीक है। तो आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गैप नहीं छड्डना, तो उसनू बिल्कुल कंटीन्यूअस लैके जाना है। तो डिमेंशनिंग आप इस तरह कर सकते हैं। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। डू नॉट यूज विजिबल सेंटर और डिमेंशन लाइन्स एज एन एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। आप की कर सकते हैं, आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੋਇਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਥੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਹਿਡਨ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदे भी आप नैवर अवॉइड डिमेंशनिंग हिडन लाइन्स, हिडन लाइन्स नू कदे भी डिमेंशन नहीं करते, ठीक है। जिवें आ हिडन लाइन कोई पार्ट इनविजिबल होवे आप हिडन लाइन नाल शो कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं तुहानू एक एग्जांपल दे देना, जिवें आ मेरे कोल सर्कल है, इहदे विच एक होल है, तो मैं इहदी जदों प्रोजेक्शन आ वाला व्यू इहदी लेंथ इहनू स्पैसीफाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सिलेंडर टाइप दिखूगा। तो जदि आ वाला होल मैनू स्पैसीफाई करना पैना तो वो मैनू हिडन लाइन नाल शो करना पैना। तो हमेशा आप जी हिडन लाइन नू कदे भी डिमेंशन नहीं करते, ठीक है। तो अवॉइड डिमेंशनिंग हिडन लाइन्स। और तो बाद प्लेस डिमेंशंस आउटसाइड द व्यू अनलेस प्लेसिंग दैम इनसाइड इंप्रूव द क्लैरिटी, मतलब ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल इस तरह करो डिमेंशनिंग
ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿਊ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਵਿਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਰੀਡੇਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਵਿਊ that clearly represents the contour or shape of the feature। ठीक है, इस तरह ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, ਆ ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई डिमेंशन आ पहला नीचे करती, इनू थोड़ा जा ऊपर करके करता, इनू बिल्कुल करता। ठीक है, या तो बिल्कुल चेन टाइप हो, बिल्कुल इको लाइन दे विच सारी डिमेंशनस हो, 20 हो गया, 40 हो गया, 20 30 हो गया। ठीक है, इस तरह होवे ते आ पूरी लेंथ दी, तां इत्थों आपां ईजीली इहदा आपां नूं पता ही लग सकदी है कि कितनी लेंथ है। ठीक है, तां आपां इस तरह आ बिल्कुल आ देखो इंटर आ डिमेंशनिंग लाइन दे विच आ एरो हैड इधर नूं लाता। ठीक है, ये या तां इस तरह आपां एक एरो हैड ही लाउण दी लोड़ है, बाकी दूसरी लाउण दी लोड़। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं प्रैफर करना, हमेशा जिहड़ी माइंड च रखनी है गुड प्रैक्टिसिस ही रखनी है। ठीक है, अवॉइड रिपीट डिमेंशनिंग। दोबारा जिहड़ी चीज़ एक बार आपां स्पैसीफाई करती, डिमेंशनिंग करती, तो उहनूं दोबारा डिमेंशन ना करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बिल्कुल इत्थे भी तुसी डिमेंशनिंग करती, इत्थे भी सारी वो डिमेंशनिंग देती। इत्थों आपां नूं जिवें आ 40 है, 20 है, 10 है, तां भी 10 है। ठीक है, आ अपना कितना हो गया 60 80, तां इत्थे भी मैं 80 लिखता, तां मैनूं वो दूजे व्यू दे विच ओहदी डिमेंशन करन दी लोड़ नहीं है। इत्थे मैं बिल्कुल व्यू की है बिल्कुल क्लीयर फ्रॉम दी डिमेंशन नंबर्स एंड डिमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन्स, so that designer should easily understand the views of the drawing. Now this is the problem solving steps. There are some from a given orthographic views, orthographic ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਆਸਕਿੰਗ yourself the questions in a sequence। what feature, सब तो पहला ये एक डिजाइनर ही सोच सकता है कि उन्हें किहड़ा फीचर ज़्यादा शो कर जड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है उन्होंने किस तरह डिमेंशन करना है। ठीक है, उन्होंने सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट फीचर नूं, उन्होंने आइडेंटिफाई करना है, दैन उस ओदी टाइप्स देखनी है, स्लॉट है, होल है, चैम्फर है, रेडियस है, लेंथ है। ठीक है, एंड हाउ टू प्रेजेंट द डिमेंशन, मैचिंग द फीचर इंफॉर्मेशन टू द डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स, मतलब वो जिहड़े फीचर्स आप मैच करने हैं। वेयर टू प्लेस द डिमेंशनिंग कंपोनेंट्स, दीज आर दी 3 क्वेश्चंस which you have to make in mind while dimensioning the components and view of the drawings। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने को देता हुआ what height of the part, how, extension line, dimension number, मतलब what, how and where। ये 3 चीज़ां आपां जरूर माइंड दे विच रखनियां। डेप्थ ऑफ पार्ट सेम एज आप एक्सटेंशन लाइन यूज़ करते हैं, डिमेंशन लाइन यूज़ करते हैं, डिमेंशन नंबर यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट व्यू, राइट एज, साइड व्यू, टॉप व्यू, ये सारियां अपना जिहड़ा की है मैं तुहानूं जदों ऑर्थोग्राफिक प्रोजैक्शनस करांगे तां उहदे विच फर्स्ट एंगल ते थर्ड एंगल प्रोजैक्शन बारे भी डिस्कस करांगे। ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ as well as the good practices should be drawn on your sheet। ठीक है जी, तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ मतलब मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।